اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم کرام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، ویلکم جی آل۔ اور ہماری سسٹر رخسانہ شاہین ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہیں آج۔ تو وہ کیا کہتے ہیں نا، ہمارا آج پاؤ خون بڑھ گیا، ہماری سسٹر بیٹھی ہوں، بہن بیٹھی ہوں، ساری سسٹرز ہیں، بردرز ہیں۔ تو جزاک اللہ سسٹر۔ آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں جی، آؤ قرآن سمجھے کے اندر حصہ اول یعنی کہ نماز کے ذریعے سبق نمبر 15A کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ کون سی سورہ نصر پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا جی، قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس صورت کے بعد مکمل صورت، یعنی کہ کچھ آیات وغیرہ ہی ہیں، لیکن یہ کمپلیٹ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت اسلام کے دشمنوں کو شکست ہو چکی تھی اور لوگ گروپس یعنی کہ فوج در فوج جو ہے نا کی شکل میں وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب ان کو کوئی ڈرانے والا، کوئی کنفیوز کرنے والا نہیں تھا۔ اس سورہ میں یہ تعلیم ہے کہ نئے کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی، اور اس وقت کیا جی، ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، دنیا کی بہترین کلاس کے اندر ہم موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے جی۔ جی ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی سوالات کچھ۔ اجعلنی، اب انشاءاللہ آج ہم یہ جو اجعل ہے نا اس کو بھی پڑھ لیں گے۔ جی، آج کا سبق میں نے بتا چکا ہوں، سورہ نصر پڑھیں گے۔ آج ہم گرامر کے اندر فعل امر و نہیں، جو ہم بات کر رہے تھے نا، تیسرا سٹیپ اور آخری سٹیپ ہے فعل کا۔ پہلے ہم نے ماضی پڑھا، پھر ہم نے مضارع الحمدللہ کمپلیٹ کیا۔ آج ہم فعل امر و نہیں کس سے، فعل جعل فتح سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نکات تعلیم بھی بڑا زبردست ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر صرف 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 944 یعنی کہ 12 ورڈ جو ہیں 944 ٹائم قرآن پاک میں آئے ہوئے، 944 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے الحمدللہ۔ ابھی 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد ہم الحمدللہ 15واں لیسن اپنا کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس لیسن نمبر 15 کے اختتام پر ہم 186 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ آج ہمارا یوں سمجھ لیں کہ کوارٹر پارٹ جو ہے نا وہ رہ جائے گا، آگے 5 کلاسز ہماری رہ جائیں گی۔ یہ جو الفاظ ہیں 186 الفاظ، یہ قرآن پاک کے اندر 37,500 بار آئے ہیں، یعنی کہ 37,500 ٹائم قرآن پاک میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے جی۔ جی سورہ نصر ہے جی، اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، آواز میں ہل کٹ کٹ کے شاید آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جی اچھا، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ تو میں نے انٹروڈکشن پہلے کروا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی کیا جی، آخری سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ سے پہلے یعنی کہ سن 8 ہجری میں یہ آئی تھی، اتری تھی، نازل ہوئی تھی۔
عظیم خوشخبری اس کے اندر کیا ہے جی؟ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا اسلام قبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل بھی اس میں ہے، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہونے کا بھی اس کے اندر اشارہ ملتا ہے۔ تو حمد، تسبیح اور استغفار کے اس کے اندر حکم ہے۔ سورہ نصر، اس کا ہم ترجمے کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ ایزا کا مطلب ہمیں پڑا ہوا ہے، از یا ایزا اس کا مطلب ہے جب۔ اب یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر اس کے بعد ماضی آئے تو کیا ہو جاتا ہے، کیا اثر پڑ جاتا ہے؟ سر یہ مزاج مزارے بن کے معنی میں آ جاتا ہے۔ سارے میں آ جاتا ہے۔ مضارع کا میں نہیں آ جاتا ہے، کیسے آ جاتا ہے؟ جا کا مطلب ہے وہ آیا، جب آئے گا ایزا جا، جب آ جائے۔ تو اس جب ماضی پر داخل ہوگا تو مضارع کا کیا جی میننگ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ نصر اللہ، نصر اللہ اللہ کی مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں یہ اسم فعل عرب میں سے یہ کیا ہے جا؟ فعل ہے، کیا ہے یہ؟ فعل فعل، فعل کون سا ہے؟ ماضی کا ہے۔ فعل ماضی۔ ماضی۔ بس آپ کہیں جی فعل ہے تو ٹھیک ہے، آگے پوچھا جائے گا تو فعل ماضی۔ یہ تھوڑا سا بتا دیں گے یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ سر اس ناصر، سے میں فعل ہے سر جی مفہوم ہے۔ پکی بات ہے، کیسے پتا چلا؟ میں اگر کہوں یہ فعل ہے تو پھر ناصرہ کا ٹیبل کیا ہوا نا آپ نے؟ جی سر یہ وہ اس کے نصرت بعد سر والا جی آتا ہے۔ اللہ اسم آ رہا ہے۔ جی، مس ندیم کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کے بعد اللہ آ رہا ہے نا، نصر اللہ اللہ کی مدد، اس سے میں ہاں، سر جی نہیں اللہ بھی تو اللہ کیا ہے؟ اللہ بھی تو اسم ہی ہے نا۔ جی تو یہ نصر اللہ یہ کیا ہے نصر؟ اسم ہی ہے یہ بھی۔ سر فعل نہیں ہوگا؟ تعریف فعل ہے۔ سر فعل ہم نے پڑھا نہیں، نصارہ نصرہ، یلدو۔ نصرو، نصرتا، نصرتو۔ سر میں نے ٹھیک ہے، فعل وہاں پہ کہیں کہا پہ تھا۔ دیکھیں نس رو آیا ہوا ہے کہیں پہ اس فعل میں، کہیں دیکھیں ناسا را، سر ناسا نصرو رو۔ نہیں ہے، یہ نصرو فعل بن گیا ہے، مدد۔ سوری فعل نہیں، اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ وہ تو سارے ہی کہہ رہے وہ ہیں جی کوئی اسم ہے۔ کام کرتا ہے، اسم کام، فعل جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، اسم تو بذات خود ایک چیز کا نام آ گیا۔ یہ کوئی کام تھوڑی کر رہا ہے، میں نے کیا، آپ نے کیا، ہم نے کیا، ہم سب نے کیا، یہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی مدد آ گئی ہے یہ۔ فعل کی ڈیفینیشن اسم کی دیکھی نا کہ کسی کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، تو نصر نام ہے، نام بھی ہے نا، تو یہاں پہ اللہ کی مدد ہے، اچھا تو چلیں مدد اسم کے جی، تھرو دیکھیں تو وہ فعل ہو سکتا ہے، اسم، لیکن یہاں پہ اسم کے طور پہ لیا گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ اسم ہے۔ ذرا اس پہ میں نے زور بہت زیادہ دیا ہے تو اس کو غور سے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا نا زیدن، زیدن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے ہی ہے، میں نے یاد ہوگا کسی کو کہا تھا کہ اگر ایک پیش کے شروع میں آ جائے اللہ ہو آگے کوئی، پہلے مجھے یاد نہیں آ رہا فکرہ، تو اس طرح کو ہم نے ذکر کیا تھا، ایک پیش بھی آ سکتی ہے اینڈ میں، تو یہ بہرحال کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جس کو یاد رکھنا ہے۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے۔ الفت، کھولنا، جیت۔ پہلے کیا ہوتا ہے جب جیت کے لیے اپنا کسی قلعے کو فتح کر لیا جاتا تھا تو وہاں پہ یہی بات کی جاتی کہ انہوں نے قلعے کو فتح کر لیا، تو جیت، کامیابی، کھولنا بھی اس کا میننگز ہو سکتا ہے۔ الفت یعنی کہ فتح مکہ 8 ہجری، یہ بھی اس پہ ذرا غور رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اس کے بارے میں بتا دیں، فتح بھی ہم نے ایک پڑھا ہوا نا ٹیبل، فتح 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 تو فتح، تم یہ بتائیں اسم فعل میں سے کیا ہے؟ سر سر یہ تو فعل ہے۔ اسم خاص ہے، اسم ہے، نہیں، کسی سسٹر نے کہا اسم ہے۔ اسم ہے سر، اسم خاص ہے، یہ خاص نہیں اسم۔ نہیں، کسی نے فیل کہا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ابھی لگا کسی ہوا نے ہے کہا ساتھ فیل؟ جی۔ تین میں نے کہا سر فعل۔
मेरी बहन, इसके अंदर अल लगा हुआ है, यहाँ पे आप आंखें बंद कर लें अपनी। अच्छा ठीक है, ठीक है। शुरू में अल लगाओ तो आंखें बंद कर लें बस। कहें जी ये इसम है, दूसरी राय कोई नहीं होनी चाहिए। सिस्टम मेरा ख्याल इसने गायदा ने कहा है कि जब अल लग गया ना, फिर तो आपको कुछ दूसरी राय ना कायम करें, वो सीधा इसम है, वो भी फिर खास किस्म का इसम है। चले, दुआ, ऐ अल्लाह हमें भी नुसरत और फतह नसीब कर। एहतसाब हमने क्या किया, प्लान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, ताकि नुसरत और फतह नसीब हो। इस हफ्ते इस मुकाम पर क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अपना वक्त कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, अपनी सलाहियत कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, अपना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आएंगे सोचिएगा। ना। नस्रु इसम है। वल फतहु, चलो वल फतहु तो इसमें तो अलिफ लाम लग गया, इसमें समझ आ गई इसमें। लेकिन ये नस्रु कैसे इसम बना है, ये भी आप सिखाएंगे ना? कैसे बना, अभी बताया तो है मैंने, पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि अल्लाह, कोई आगे फिक्रा आया हुआ था तो मैंने कहा था देखें जी, अगर ये पेश भी अगर आएगी तब भी हम उसको क्या कहेंगे, ये इसम है। अच्छा, अगर पेश बस, आएगी तो आखिरी हाँ, हर्फ पे, इसके पहले तीसरे हर्फ पे आएगी तो वो पिछली कोई इसम होगा। स्लाइड, पिछली क्लास के अंदर ये बातचीत हुई थी। वैसे भी नसर नाम होते हैं ना, नसरुल्लाह, वैसे ही ये देखें, अल्लाह की मदद, नसरुल्लाह लोगों के नाम नहीं होते। जी जी। किसने सुना हुआ है किसी का नाम नसरुल्लाह? इसमें जात कहते हैं। जी किसी ने सर, होता है। जी, रसुल्ला नाम होता नाम होता है किसी, यानी कि किसी ने रखा होता है नाम। तो इसके अंदर है। कोई ऐसी, वो जो सिस्टर रुखसाना ने बात की थी, कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई जमाना तो बीच में आ ही नहीं रहा ना। चलें, ऐ अल्लाह हमारी मदद कर, हम दुआ करेंगे कि, और फिर हम अपना एहतसाब करेंगे क्या हमने वो काम किए जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं। फिर हम प्लान बनाएंगे इनफराद इज्तिमाई, ताकि हमें अल्लाह की मदद हासिल हो। इस हफ्ते इस मुकाम पर क्या कर सकता हूँ, अपना वक्त कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, अपना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, दीन की खिदमत के लिए कर रहा हूँ या किसी और जगह पे कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों का आपने इंशाल्लाह प्लान बनाना है, अपने अकेले भी और इज्तमाही तौर पर भी साथ मिलकर। चलें, जज़ाकल्लाह जी, तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इज़ा जा, जब आ जाए, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फत, और फतह। जी सिस्टर अंस, जी मेरी बहन। इज़ा, जब, जा, आ जाए, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह। जी अफशीन नासर। इदा, जब, जा, आ जाए, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर। इज़ा, जब जा आ जाए, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह। जज़ाकल्लाह जी। वालेकुम। चलें अब, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इजाजा का मतलब तो पहली स्लाइड ही कहीं डिलीट होगी। जी, नसरुल्लाह के मीनिंग्स क्या होंगे? कह दो। अल्लाह की मदद। चलें ठीक है बेटा, कोशिश करें कि चैट बॉक्स में लिखें। जी, किस हिजरी साल में मक्का फतह हुआ, किस हिजरी साल में? इस पर जरा गौर कीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन किसी न किसी जगह, सिस्टर जायदा, सिस्टर अन, सिस्टर डॉक्टर हाना, सिस्टर नरगस, ये इस पे फोकस रखिएगा। जो ये हमारी सिस्टर हैं अफशीन नासर, ये बड़ा गौर रखती हैं कि जिसमें मैं फोकस करता हूँ, कहती हैं ये लाजमी क्विज में आया होता है या लाजमी किसी चीज़ में आता है। अब मैं उस दिन से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। चलें, आगे हम पढ़ते हैं जी, वरायत अन्नासा। जी, ये रुयत लाल कमेटी वाले देखे हो किसी ने, उनको क्यों कहते हैं रुयत लाल? जी, वो चांद देखते हैं। चांद देखते हैं, रोहित को करते हैं ना, तो ये मीनिंग्स वहीं से आया हुआ है। ठीक है, वाव का मतलब और, रायता, आप देखें ये ऐसी है जैसे हमने क्या पढ़ा था, फालता, अंता। ठीक है जी, आप देखें। अच्छा, ये मुझे कोई बताएंगे ये माजी का है जो रायता है, या मुदारे का है? सर माजी का है। माजी का है, तो मीनिंग्स को इसके क्या आ रहे हैं?
आप देखें, देखें, मुदारे के हैं मुदारे या है माय? सर, मुदारे है। हाल हाल है। तो ये जी। हाल के क्यों आ रहे हैं? आप साथ कह रहे हैं माजी है और ये साथ इसके क्यों आ रहे हैं? फिर इसके कोई आगे बता पीछे कोई वर्ड नहीं है। जी। आज के 10 इसम नंबर अगर उसके हैं, 10 नंबर उसके हैं जो इसको जवाब दे दे। देखें, रायता फालता की तरह लिखा हुआ है, अंता की तरह। माजी का सीगा है, फालता माजी का सीगा है। ये इशारा है, ऊपर नहीं है, ये सामने है। फाल है, फालू फालता, माजी का है, ये भी कह रहे हैं। मीनिंग्स इसके क्यों चेंज हुए हैं, कोई बता दे। ये सर इसके इज़ा बाद की वजह हाँ, से क्योंकि है ना, इज़ा इज़ा। की इज़ा तरह की वजह से पीछे इज़ा आ माजी रहा के है, जब साथ इज़ा के लिखी। बाद मुसलसल एक ही बात चल रही है। चलें, जजाकल्ला जी। वाओ पीछे से रिलेट हो रही है ना, पीछे इज़ा था। ठीक है, माशाल्लाह जी। ये सब बताया मेरी पहले सिस्टर, क्या कहते हैं इसको, जायदा ने। चलें जी, आपके 10 नंबर पक्के होंगे। ये देखिए, इसके अंदर छुपा हुआ है। क्यों? पिछली बात, जब हम कोई बात पीछे से लेकर आते हैं वाओ के साथ और, तो वो क्या होंगे? आप देखें, बीच में आ रहा है और जब आप देखें। नास, ये आपको पता है माशाल्लाह, कितनी सूरतें उन्हें पढ़ ली हैं, इंसान, आदमी, नास, लोग। इससे मुराद अरब के मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे। आगे क्या हो रहा है? यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। यदखुलूना, दखूल, खरूज, अंदर जाना बाहर जाना। या आप अगर कहीं आपका सऊदीया चक्कर लगे, वहां पे लिखा होता है दखूल एंट्री पे, और खरूज एग्जिस्ट जहाँ पे होता है, तो वहां पे खरूज लिखा है, यानी बाहर जाने का रास्ता, अंदर जाने का। वो सारे क्या हो रहे थे? दाखिल हो रहे थे, अंदर आ रहे थे, दीन में आ रहे थे। दीन, जिंदगी गुजारने का तरीका, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। ठीक है जी, फी दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन में। अच्छा, यहाँ हम बात कर लेते हैं ईसाइयत वाले जो है ना, वो क्या है, प्रस्तुत पूजा पे ज्यादा, कम्युनिज्म वाले क्या करते हैं, तजारत मिशत उस पर ज्यादा करते हैं। इस्लाम क्या है जी? वो दीन है, वो पूजा भी यानी करते हैं अल्लाह ताला की, और तजारत पर भी फोकस रखते हैं, अपनी सियासत पे, मीशत वगैरह पे, सारे पे। इस्लाम दीन में हर चीज इबादत है, अगर अच्छी नीयत से की जाए। अगर आप तजारत कर रहे हैं अच्छी नीयत से, तो वो भी आपकी इबादत है। अगर आप अब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भी सारी वो है। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपकी डिपेंडेंट ऑन नियत। अगर आप अच्छी नियत के साथ कर रहे हैं, तो उसको इंशाल्लाह अजर मिलेगा मिलेगा। अफवाजन, फौज, अफवाज, ये क्या है? उसकी जमा, यानी क्या? फौज दर फौज। जी। नतीजा है कि जी फतह नुसरत, दीन में दखूल। क्या हम इसी नियत से फतह चाहते हैं कि लोगों के हदायत के लिए रास्ते खुलें? क्या हम अल्लाह को हो, क्या हम लोगों की हदायत के लिए दावत और इस्लाम का काम कर रहे हैं? तो तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं जी, क्या हम ये सारे काम कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं? वरायता, और आप देखें, वरायत अन्नासा, आप देखें किसको? लोगों को, यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं, फी दीन अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज। जी डॉक्टर साहब पढ़िए आप। जी सर। वराइता, और आप देखें, अन्नास, लोगों को, यदखुलून, दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज। जाकला जी, अफशिन नासर। व अरईता, और आप देखें, अन्नासा, लोगों को, यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। जाकला जी, सिस्टर रुखसाना शाहीन, कौन है आप हैं, कोई बच्चा है? अनम्यूट कीजिए। वरा अईता, और आप देखें, अन्नासा, लोगों को, यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। जजाकल्ला जी। ये बच्चे नहीं चलें, पढ़ने। सिस्टर से करवाते हैं जी आगे हम। बाकी जरा जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, अपने आप को म्यूट रखें, और चैट बॉक्स में दीन के मीनिंग्स है क्यामत, और दूसरा क्या है? अच्छा, ये देखिए कितने करीब करीब सवाल है जी। इसमें क्या है जी? के, और इसमें का। अब ये कंफ्यूज, तो क्या है बेसिकली? जिंदगी गुजारने का तरीका, खाली जिंदगी,
اس پہ بھی لوگ کنفیوز رہتے ہیں، جب کوئز میں آتا ہے تب کہتے ہیں جی اچھا یہ ٹھیک تھا یہ ٹھیک تھا نا، تو یہ بہت زیادہ قریب سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. افواجن، لوگ فوج در فوج فتح اکیلے. جی سسٹر زاہدہ ماشاء اللہ جی. ڈاکٹر ریحانہ اسلم، سسٹر رخسانہ، ٹھیک ہو گیا جی. جی سورہ نصر میں مذکورہ فتح کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اچھا لکھے بھی جا رہے ہیں سسٹر، نہیں ابھی نہیں. دشمنوں کا خاتمہ کیا ہوا تھا؟ مسلمان مالدار ہو گئے تھے. کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے اسلام قبول کیا، دشمن مارے گئے تھے. سسٹر زاہدہ، سسٹر ریحانہ، سسٹر رخسانہ. آپ شینال نہیں ہے جی. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا چیٹ باکس میں کے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. جی کون بتائے اس کے ٹکڑے کتنے ہیں جی؟ دو سر، دو ہیں تو کون کون سے ہیں؟ فا فا اور اور سب سب. سبی ٹھیک ہو گیا جی. یہ بتائیں بی حمدی اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو سر، سر جی دو دو بی اور دو. حمد اور ربی کا دو دو سر جی دو ٹکڑے. دو. بی اور فا اور اس میں تین، کون کون سے؟ واؤ استغفر اور ہو. او چلیں جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ جی آپ لوگوں کی اچھی پریکٹس ہے. فا سبی پاک، فا کا مطلب ہے پاس، سبح پاکی بیان کیجئے. سبح سبحان اللہ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، پاکی بیان کرنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا وہ نہیں ہے. باقی آپ نے بتا دیا بھی حمد کے دو ٹکڑے ہیں، بی اور سات. بی کیا ہے جی؟ سات. اور حمد کیا ہے جی؟ تعریف کے. ٹھیک ہے جی. حمد تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ حمد ہے خوبیوں کا بیان کرنا، تسبیح نقائص کی نفی کو کہتے ہیں. اور ربی کا تیرا رب، ذرے ذرے کی پل پل کی پرورش کرنے والا. آگے جی واستغفروا، یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. بیسیکلی کیا ہے؟ استغفر، استغفر ہو. واؤ یہ دیکھیں تین ٹکڑے ماشاءاللہ پہلے بتا چکے ہیں. واؤ اور استغفر، بخشش طلب کیجئے. ہو کس سے؟ اس سے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، ان ساری چیزوں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اسباق دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، نہ اس کو کسی پہ کسی کا پریشر ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا. وہ اکیلا ہے. کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. اختیارات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طاقت بھی بولتے ہیں. جو کچھ اللہ نے قانون بنا دیا اس کے اندر وہ اکیلا ہے. بس کیا جی؟ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. اللہ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں. وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ عادل ہے، وہ سمیع ہے، وہ کبیر ہے، وہ خالق جمیل وغیرہ ساری کی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. یعنی کہ 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں بہترین، ہر صفت بھی بہترین ہے، قابل تعریف ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف اور شکر حمد ہو ہی نہیں سکتا. ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص، اس پر بھی استغفار ہو. جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح، حمد اور کیا کریں ہم نے؟ استغفار کرنا. تو لنک کی سائڈ ہے فسبی، پس باقی بیان کیجئے، بی حمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، وستغفر ہو اور بخشش طلب کیجئے اس سے. جی سسٹر انس سے میں نے کہا تھا جی انشاءاللہ سب سے پہلے ان سے کریں گے. جی میری بہن. فسبح پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، و استغفرہ اور بخشش طلب کیجئے اس سے. جزاک اللہ جی. سسٹر ڈاکٹر ریحانہ اسلم، میں یا ادیبہ ہے کون ہے؟ جی ڈاکٹر ریحانہ. میرا نام ابیہا ہے. ابیہا آپ نے؟ اچھا ابیہا ٹھیک ہے. کل تو ادیبہ لکھا ہوا تھا.
चलें कीजिए, रिवाइज तो कीजिए बेटा, कीजिए। बस आपकी बयान कीजिए बेहमदी तारीफ के साथ रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहू और बख्शिश तलब कीजिए उससे। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर रुखसाना। फसब्बी, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बी का अपने रब की, व इस्तगफिरहू और बख्शिश तलब कीजिए उससे। जज़ाकल्लाह। जो सिस्टर बच्ची पढ़ रही थी, ये 6th क्लास की स्टूडेंट है, आपसे पहले जो पढ़ रही थी, माशाल्लाह। जी, तस्बीह का मतलब क्या है जी? ठीक है। वस्तगफिरहू क्या करने हैं? सवाल चेंज हो चुका है। सिस्टर जाहिदा, ठीक है। सिस्टर अन, सिस्टर शीन, डॉक्टर यहाना असलम जी। चलें जी, अब एंड में आ गया इन्नहू काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। कितने टुकड़े हैं जी यहाँ पर? 2 टुकड़े। दो। इन्ना बेशक हूँ वो। वो 2 टुकड़े। चलें, इसका मुझे बता दें कि ये क्या कहते हैं, इन्ना वो 2 टुकड़े हो गए, क्या मतलब है इन्ना का? बेशक बेशक वो किस फ्रेज से याद कर सकते हैं? इन्नल्लाह इन्नल्लाह मास मास्साबिरीन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ हु लगा हुआ है, ये कोई टेबल को बता सकता है? इन्ना हु टेबल बन सकता है इसका? इन्ना हु, इन्ना हुम, इन्ना का, हुआ, इन ही। काल, इन्नकुम इन्नना। ठीक हो गया। ये इस तरीके से टेबल अगर आपने नहीं भी किया तो बन जाएगा। आगे वर्ड आ रहा है जी काना। ये इंशाल्लाह चले पहले ये बताएं, फेल, इसम फेल अरब में से क्या है ये? फेल। फेल है। इसका मीनिंग्स क्या होता है? था। हाँ, यहाँ पे इसका मीनिंग्स आ रहा है। है, असल मीनिंग क्या है इसका? हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे है इसलिए कि अल्लाह ताला के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए इसका मतलब है में आएगा, वरना इसका मीनिंग्स क्या होता है? था। ठीक है। तवाबन, ताबा वो पलटा, ताइबुन पलटने वाला, तवाबुन बार बार पलटने वाला। कौन? अल्लाह ताला। बार बार पलटने वाला, बंदा गलती करता है तो भी पलटता है, अल्लाह ताला पलटते हैं उनके बंदे की गलतियों को माफ करके। ये हमने पढ़ा हुआ जी, तवाबुन तवाबून, तवाबन या तवाबिन से बनेगा तवाबीन। ठीक है, तो ये बन है यहाँ पे, इसकी अगर जमा हमने सीखनी है, इस माह के हम क्या करें, जमा को सीख लेते हैं और जी। बंद। अजीम शान खुशखबरी हम गुनाहगारों के लिए, कभी भी हरगिज मायूस नहीं होना चाहिए, सच्ची तौबा कीजिए। यानी गुनाहों का एतराफ, ऊपर शर्मिंदगी, और दोबारा ना करने का पक्का और मुसम्मम इरादा, यानी कबूलियत पर फौरी तौबा करना। मिसाल, अगर मैं भूखा हूं, अगर कोई कहे कि मैं लाखों का खाना खिलाता हूं, तो इसकी वो थोड़ी है। ठीक है जी। अजीम शान अब खबर खुशखबरी दी जा रही है, किन को? हम जैसे गुनाहगारों को। हमने कभी अल्लाह से क्या होना, हरगिज हरगिज मायूस नहीं होना। सच्ची तौबा कीजिए इस यकीन के साथ कि हमारी तौबा कबूल हो चुकी होगी। उसमें क्या करना, हमने गुनाहों का इतराफ करना है, उस पर शर्मिंदा भी होना है, ना करने का दोबारा पक्का और मुसम्मम इरादा कर लेना कि इंशाल्लाह जो गलती की है दोबारा नहीं करेंगे। तो उस पर आपने यकीनन यकीनन कबूल होगा, और आपने यकीन भी रखना। फौरी तौबा करना तो यही ऐसे है जैसे कोई भूखा हो तो उसको खानों लाखों का खाना खिलाए, तो कैसी वो सच्ची तौबा फिर करता है, कैसे दिल से वो निकलती है, तारीफ भी निकलती है जी। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ मशक करते हैं। इन्नहु बेशक वो, काना है तवाबन बड़ा तौबा कबूल करने वाला। जी सिस्टर रुखसाना कर दीजिए। जी सिस्टर रुखसाना। इन्ना इन्नहु बेशक काना है तवाबन बड़ा तौबा कबूल करने वाला। जी डॉक्टर इन्नहु हना सलाम।
सर ये नवासी पढ़ रही है जरा। पढ़ा दे। चले माशाल्लाह। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। जी ये जज़ाकल्लाह मेरे बेटा, शाबाश जी। इसी रेहाना क्लास में है हसन। माशाल्लाह। इन्नाहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अंस, आप भी पढ़ दीजिए। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। चलें, अब शीना असर आप भी कर दे। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। चलें, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। जी, जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो आपको चाहिए कि एक सजा जो क्या करनी चाहिए, आपको तस्बीह करनी चाहिए, बेशक शुक्र भी करना चाहिए, हम्द मगफरत तलब करनी चाहिए। ब्रदर जुनैद कह रहे हैं अच्छा, शीना सर ठीक हो गए। चलें, सूरह नसर का खुलासा या नुकात थोड़े से देख लेते हैं। सूरत में हमने 4 बातें सीखते हैं। कामयाबी और फतह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद से है। ये आपकी मेहनत स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मदद के बगैर आप ना कामयाबी हासिल कर सकते हैं ना कोई फतह हासिल कर सकते हैं। कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। जब कामयाबी हासिल हो तो अल्लाह की तस्बीह कीजिए, अल्लाह के हमद कीजिए और इस्तिगफार कीजिए। ठीक है, हम क्या होते हैं जब खुश होते हैं तो अल्लाह को भूल जाते हैं, जब हम गमगीन उसमें होते हैं तो फिर अल्लाह को याद करते हैं। हमेशा जब आपने शुक्र अदा करना है तो हर हालत में शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला की जात बार 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 माफ करने वाली है। अगर कोई गलती हो जाती है सच्चे दिल से तौबा कीजिए तो इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल होगी। जी, बी पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं जी। बी पोर्शन में हम फेले अमर व नहीं, इसके नए सीखे नए तरतीब होगी, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को हाजिर कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, लाउड 5 लाउड लंबा सांस लीजिए। हम क्या करेंगे, इफ हल इफ ता इज अल, वो नी है वो इसके साथ आज अब इंशाल्लाह देखेंगे। ग्रामर हम करते हैं टीपीआई से। क्या जी टीपीआई? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अल्फाज कलमे की कितनी किस्में? 3 किस्में। इसम किसी का नाम, जैसे माशाल्लाह आपके बड़े खूबसूरत प्यारे नाम, किताब, मक्का, मुस्लिम वगैरह। सिफ्त है जी मुस्लिम, मोमिन वगैरह। शुरू में क्या लगा के निशानी? अल लगा होगा। अल लगा हो तो आपने आंखें बंद कर लेनी है, कि वो इस समय 2 जबर 2 पेश 2 जेर आ सकती हैं, वाव नून आ सकता है, या नून को अलिफ्ता आ सकता है आखिर में, और गोलता भी आ सकता है। ठीक है नी। फेल जिससे किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, इसमें जमाना भी पाया जाता है। अब ये देखिए, इसमें भी वाव नून आ रहा है लेकिन इसमें जमाना है। वाव नून जमा के लिए भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ये भी जमा को लेगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। हर्फ क्या जी? 2 इसमों को 2 फेलों को आपस में लाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। ये सारे क्या है जी? हर्फ हैं जी। फेल हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं 3 हरूफ वाले। कौन से? 3 हरूफ वाले फिर फेल पढ़ रहे हैं। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह फेल माजी हमने कंप्लीट कर लिया। फेल मुदारे, फेल माजी जो हो गया, जो काम कंप्लीट, खत्म, फिनिश। फेल माजी जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, हाल और फ्यूचर की बात। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट कर लिया। फेल अमर पे हम पहुंच गए। अब इसमें क्या है जिसको गौर कीजिएगा, किसी काम के करने का हुक्म देना है, किसी काम से रोकने के लिए आपने उसको गुजारिश करनी है, किसी काम को ना करने के लिए भी, करने के लिए भी आपने हुक्म भी दे सकते हैं। किसी छोटे को, बड़े को हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं जी, अयादा कर लेते हैं। फेले माजी, ये साइड माजी की है, ये मुदारे की है। माजी क्या है जी? इसके एंड में तब्दीली आती है। गौर करें, फाइलम फाइलम ये सारों में है, शुरू में, एंड में तब्दीली क्यों? आपको ये जहाज नजर आ रहा है, जब जहाज ऊपर जाएगा उसकी टेल आपको पीछे से नजर आएगी। क्यों? जहाज जा चुका है, तो तब्दीली कहाँ पे है? एंड में। जब आप किसी रनवे पे खड़े हैं, आपको जहाज आते हुए देख रहे हैं तो उसका ये नजर आ रहा है ना, फ्रंट नजर आ रही है, तो इसकी तब्दीलियां कहाँ पे? फ्रंट पे है। याद रखिए कि मैंने कहा, बार बार मैं कहता हूँ, ये इतनी सी बात है। अलिफ, ता, नून और या इसके यहाँ पे शुरू में आए गए। देखिए इसमें या है,
اس میں تا ہے، اس میں یہ حمزہ یا الف ہے، اس میں بھی تا ہے، اور اس میں نون، یہ چاروں ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ والے۔ یہ کیا جی؟ مضارع کی نشانی ہے۔ ماضی میں فاعل ہے، فاعل، فاعلتا، فاعلتو، فاعلتم، فالنا، اشارے ہمارے چیسٹ لیول پہ تھے۔ مضارع کے اندر آواز، جو ساؤنڈ ہے آپ کی لاؤڈ ہو جاتی ہے، اونچی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اشارے بھی یہ ہیڈ کے لیول پہ چل رہی، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اور شروع میں تبدیلی ہے جی۔ کیف فعلنا، ذرا جلدی سے جواب دیجیے، کیا میننگ ہوگا فعلنا؟ کیفا کا میننگز بھی آپ کو پتا ہوگا، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ سسٹر افشین ناصر، سسٹر زاہدہ، سی، بالکل ٹھیک۔ جعلنا فی السماء، جعلنا، ہم نے بنایا، فی السماء، کس کو؟ اچھا، اس میں آ رہا ہے می فی میں، چلیں آسمان میں۔ خلقنا الانسان، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کس کو؟ انسان کو۔ جالنا کا مطلب یہاں پہ بنایا ہوگا۔ چلیں جی، الحمدللہ، آج ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے۔ ایک ورڈ ہوتا ہے سوفا، یہ مضارع سے پہلے، امر سے پہلے بھی لگتا ہے۔ سوفا، جلد، ان قریب، ٹھیک ہے۔ صوفہ کیا ہوتا ہے؟ جلد، ان قریب۔ جی سسٹرنس، اس کو ریوائز کیجئے، صوفہ سال لگے گا۔ صوفہ یفعلو، وہ جلد کرے گا، صوفہ یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، صوفہ تفعلو، آپ جلد کریں گے، صوفہ افعلو، میں جلد کروں گا، صوفہ تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، صوفہ نفعلو، ہم سب جلد کریں گے۔ جی سسٹرنس کیجئے ذرا۔ سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے، سوف افعلو، میں جلد کروں گا، سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو، ہم سب جلد کریں گے۔ جی برادر غلام نبی۔ اچھا، سوف یفعل، وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعل، وہ آپ جلد کریں گے، سوف افعل، میں جلد کروں گا، سوف تفعلون، ہاں آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعل، ہم سب جلد کریں گے۔ ہو گیا۔ اب ورڈ ہے جی صوفہ، تھوڑا سے تین اس کے اندر نا، کیا کہیں گے اس کو، حروف تہجی یا ورڈ وہ آ رہے ہیں، الفابیٹ۔ اب اگر بہت زیادہ جلدی ہے تو صوفہ کو بھی ہم شارٹ کر دیں گے، سا کہہ دیں گے، سا، سا بہت زیادہ جلدی۔ اب اتنی ہی جلدی سے پڑھنا ہے سسٹر افشین ناصر نے۔ سیفعل، وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلو، وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون، وہ بہت جلد کریں گے، ستفعلو، آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو، میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون، آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو، ہم سب بہت جلد کریں گے۔ چلیں سسٹر اپنا رفسانہ شاہین کیجیے آپ بھی ذرا جلدی سے، صوفہ کو، سا کو۔ سیف الو، وہ بہت جلد کرے گا، سیف الونا، وہ بہت جلد کریں گے، سنف الو، آپ جلد کریں گے، سف الو، میں بہت جلد کروں گا، ستف الونا، آپ سب بہت جلد کریں گے، سنف الو، ہم سب بہت جلد کریں گے۔ آپ نے کچھ زیادہ جلدی کر دیا، ساتفعلو، آپ بہت جلد کریں گے، اس کو آپ نے سنفعلو اس کو بھی پڑھ دیا، لگتا ہے نا کہ نہیں لگائی ہوئی، بہت جلد وہ سب کریں گے۔ جی چیٹ باکس میں لکھنا ہے، با یفعلون، بالکل ٹھیک ہے جی، سسٹر افشین ناصر نے لکھا ہے جی، ہے حل، ستفعلو، سی ہے اس کا جواب، کیا ہے جی؟ سی ہے، غلط کر رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں، سسٹر زاہدہ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اب ہم آج کا اصل سبق، اپنے لیسن کی طرف۔ فعل امر و نہیں، امر کسی کو حکم دینا ہے، اور نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ روکنا ہے، آرڈر کرنا ہے، ریکویسٹ کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اب اس کو بنانے کا سیکھنا ہے ہم نے۔ جی سسٹر افشین ناصر بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا سسٹر افشین ناصر، فعل امر کیسے بنتا ہے؟ جی سر، ہم میں اس لیتے میں ہیں بہت confused ہوتی ہوں، جی، بہت زیادہ ابھی تک۔ میں نے کہا میں ابھی تک بہت کنفیوز ہوتی ہوں اس میں، حالانکہ میں QC2 بھی کر رہی ہوں، لیکن میرے بالکل اوپر سے گزرتا ہے، سر کے اوپر چلیں سے گزر جاتا ہے۔
तफ़अलू, मेरे सामने सिस्टर अफशीन नासिर बैठी है, मैं इनको हुक्म देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? आप करते हैं ना, तो उसको मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, तो हम सीगा क्या लेंगे? तफ़अलू, जो सामने बैठा हुआ है, मुदारे का हमने उठाया है, ठीक है? मुदारे का सामने जो बंदा है, हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो गायब है उसको ऑर्डर नहीं हम कर सकते, ठीक है जी? जो सामने वाला है हम उसी को हुक्म दे सकते हैं, उसी को गुजारिश कर सकते हैं, उसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी को हम नहीं कह सकते। सो हम लेंगे तफ़अलू, ठीक है जी? तफ़अलू, जो सामने बैठा होगा, ये है। अच्छा, अब अमर बनाना ना, हम अमर, तो याद रखिएगा ये ता जो है, ये हमने क्या कहा? ये मुदारे का है, ठीक है? इसकी मुदारे को तो हमने खत्म करना है, मुदारे तो नहीं रहने देने, वो आखिरी वाले को हमने साकिन करना है, ये बस ये वाली है। अब ये भी साकन, एंड वाला भी साकन, अब शुरू में साकन तो आ ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे आरजी तौर पर क्या लेकर आएंगे? हमजा लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? हमजा लेकर आएंगे। अब हमजा आ गया, टेम्परेरी हमजा, बिकॉज अरवर डज नॉट स्टार्ट विद साइलेंट लेटर एज इन इंग्लिश, स्कूल, स्ट्रीट। अच्छा, अब हमजा तो आ गया, अब इसके ऊपर हमने क्या लगाना है? ये तीन में से कुछ लगा सकते हैं ना, तो याद रखिएगा अभी के लेवल तक आपने याद रखें, इस पर जबर नहीं आएगा, इस चार जो बाप पढ़ रहे हैं उस पर पेश आएगी या जेर आएगी। अब बस आपने ये डिसाइड करना है, क्या पेश के साथ उफ अल मुश्किल है, तो इफ अल क्या लगाएंगे आरजी तौर पर? हमजा जेर वाला, या जेर वाला लगाएंगे या पेश वाला लगाएंगे, फिलहाल यही याद रखिए, तो बन जाएगा इफ अल। इफ अल, अब इसके आपने जो इशारे हैं, सिंगल आपको पता है सिंगल फिंगर के साथ है, जो प्लूरल है जमा है वो चार फिंगर के साथ है। जब आपने किसी को कहना है ना, इसको कहना इफल कर, इफ अल, ये ऊपर से उंगली उठानी नीचे, चार के लिए इफ अलू करो, इफल कर, इफलू करो। ला तफल अब आपने रोकना है, तो आपने इस तरीके से कहना, नहीं करना नहीं है, ठीक है? जब हम किसी को कहते हैं ऐसे ही कहते हैं ना, ये काम नहीं करना। अगर आप मुंह से नहीं बोलते, आपके सामने बैठा हुआ है, आप किसी को बताना नहीं चाह रहे कि मैंने इसको ये काम से रोकना, तो आप ऐसे करते हैं, इशारा कर रहे थे, वो कहते हैं ये कर ये, ठीक है? तो वही इशारे, इसमें कोई नहीं है। इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो, चार फिंगर के साथ, एक फिंगर के साथ सिंगलर है, और ये है क्योंकि हमने सामने वाले को कहना है, तो इसका अगर जवाब है वो मुदारे में शिफ्ट हो जाएगा। इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो, ठीक है? अब इसका आंसर क्वेश्चन में कैसे होगा? अब सामने को कहा जा रहा है इफल कर, तो वो क्या कहेगा? अफलू मैं करता हूं, मुदारे में अफलू मैं करता हूं, इफलू यानी कि सामने लोग हैं, इफलू तुम सब करो, तो नफलू क्या कहेंगे? नफलू जी हम सब करते हैं, ठीक हो गया जी? सिस्टर जाहिदा सवाल करेंगी, सिस्टर अफशीन नासर जवाब देंगी। इफ अल, अफ़अलु, इफ अलू, नफ़अलु। चलें, सिस्टर अंस जो है वो सवाल करेंगी और सिस्टर अफशीन जवाब देंगी। इफ अल खैरन, फ़अल खैरन, इफ अलू खैरन, नफ़अलु खैरन। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब ये हमारा जो कंप्लीट टेबल है ना फेल वाला, वो कंप्लीट हो गया। माजी, मुदारे, अमर व नहीं, मिस नदीम पूरा टेबल माजी, मुदारे, अमर व नहीं को पढ़ेंगे और जरा स्पीड से पढ़ेंगे। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया, या फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना वो सब करते हैं, नफालू वो हम सब करते हैं, हिया तफालू वो औरत करती है, इफल कर, इफालू करो, ला तफल मत कर, ला तफालू मत करो। आपको मैंने सिस्टर कुछ दिन पहले कहा था कि आपने गलत पढ़ा है, और आपने मुझे बताना है कि गलत पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं किया। सर यफालूना वो सब करते हैं।
नहीं नहीं, लास्ट टाइम कोई क्लास के अंदर आपने गलत पढ़ा तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपने गलत पढ़ा, और आपने जी सर, वीडियो जी देख, सर, आपने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं किया। जी सर। आज फिर आपने गलत पढ़ा है। तफअलूना का क्या मीनिंग्स आपने पढ़ा है? आप सब करते हैं। जी, सिस्टर जायदा इन्होंने क्या पढ़ा था? वो सब। वो सब करते हैं। हाँ, आपने पढ़ा है वो सब करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वीडियो सॉरी देखिएगा। सर, सॉरी नहीं नहीं, सर, कोई बात नहीं सॉरी। है, कोई बात नहीं है। ठीक है। क्यों आपने गलत ठीक पढ़ा है। है पता है? क्यों सर? आपने इशारे नहीं किए। जी मैंने नहीं किए। हाँ, तो देखिए हमें पता चल जाता है, जो बंदा इशारे कर रहा है, जो गलत पढ़ता है वो इशारे नहीं करता। जी, ठीक है, आज आप इशारे नहीं कर रही, अगर आप इशारे कर रही होती तो आप यकीनन इशारा करती, तो आप गलत ना पढ़ती। जी सर, जी सर। देखिए मैं आपको देख नहीं रहा, लेकिन पीए का जी, टीचर मुझे पता चल गया कि आपने गलत पढ़ा, तो आपने इशारे नहीं किया, तो इसलिए इशारे जी, लाजमी जी। की। चलें, ठीक। ये एक ही दफा हम पढ़ेंगे, बाकी आगे से करवाते हैं आप लोगों से जी। जरा चैट बॉक्स में लिखें। ये जो हमारी सिस्टर रुखसाना है ना, ये टीचर है, और इनको पता है कि टीचर की नजर से बच नहीं सकते। ऐसी है ना सिस्टर? बिल्कुल ऐसे ही है, वाकई नहीं बच सकते भाई। चलें जरा जल्दी से, मैं असल में टेबल्स पे ही जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हम नई चीज सीख रहे हैं, ज्यादा लोगों से मैं चाह रहा हूँ रिवाइज करें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने फतह, फतह से हमने पढ़ना है इफ्ताह, खोल। इफ्ताहू, खोलो। ला तफ्ताह, मत खोल। ला तफ्ताहू, मत खोलो। चार लोग हैं जी, कोई और भी आ जाए, ज्यादा लोगों से इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे जी। सिस्टर अंस कीजिए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफअल मत खोल, ला तफअलू मत खोलो। सिस्टर कहाँ है तफालू? ओ सॉरी, ला तफ्ताहू मत खोलो। चलें, तफ्ताह भी आपने गलत पढ़ा है। चलें ठीक हो गया जी। सिस्टर रेहाना असलम। सर दोबारा पढ़ दूं? इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। चलें मिसेस नदीम, पढ़ें आप भी। इफ्ताह, तू खोल। इफ्ताहू, तुम सब खोलो। ला तफ्ताहू, तू मत खोल। ला तफ्ताहू, तुम सब मत खोलो। ठीक हो गया जी। सिस्टर रुखसाना शाहीन सवाल करेंगी, और सिस्टर अफशीन नासर जवाब देंगी। इफ्ताह, अफ्ताहु, इफ्ताहू। नफ्ताहु, जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नरगिस सवाल करेंगी। और कौन है सिस्टर? चलें, जाहिदा जवाब देंगी। बाकी लोग म्यूट कर लें। सिस्टर्स पढ़े सिस्टर। इफ्ताह, नहीं नहीं, ये इफ्ताहिल किताब, अफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब, नफ्ताहुल किताब। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर जाहिदा जरा पूरे को पढ़ दें एक दफा। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला। फतह था आपने खोला, फतह तू मैंने खोला। फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। फतह उस औरत ने खोला। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहू ना वो सब खोलते हैं। तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ। तफ्ताहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। हिया तफ्ताहू वो औरत खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर ने कहा हिया तफ्ताहु, तो यही वाला यहाँ पर आएगा मुन्नस में। ठीक है, इसकी तो खैर हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो हिया तफ्ताहु क्यों? आप जब कुरान पाक में जब आएंगे, मैंने पहले ही बताया था मुन्नस वाले, तो वहां से पता चल जाएगा, उसके पास तफ्ता हुआ आएगा तो वो मुन्नस वाला होगा। चलें, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे। जी, इफ्ताहिल किताब का जवाब क्या होगा? जरा यहाँ बाकी लोग लिखिए, जिन सिस्टर ने किया है वो तो ठीक है। ठीक है जी।
चलें अगला जी, अब अगला टेबल आप बड़ा जबरदस्त बनाना जी। जाला हमने पढ़ा हुआ ना, जाला जालू जालता, अब उससे पढ़ेंगे हम इज अल, बना, इज अलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। जी सिस्टर रुखसाना पढ़िए अब। इज अल बना, इज अलू बनाओ, ला तज अल मत बना, ला तज अलू मत बनाओ। जी मिसेस नदीम। इजल बना, इज आलू बनाओ, ला ताजल मत बना, ला ताजालो मत बनाओ। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सीना सर। इजअल बना, इजअलू आप सब बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू आप सब मत बनाओ। जज़ाकल्लाह जी, 3 लोगों से हो गया। जी सिस्टर अंस सवाल करेगी, सिस्टर जाहिदा शाहिद जवाब देंगी। इज अल, आज आलू, इज आलू, नाज आलू, जी सिस्टर बाजी हैं जी हमारी रुखसाना, सॉरी नरगिस को सर, सिस्टर नरगिस को सर अनम्यूट करें जी। जी सर जी। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जाला किस औरत ने बनाया। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाती हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं, हिया तजअल वो औरत बनाती है, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शीना सर आप भी पढ़ लें, ये लास्ट टेबल है हमारा, जाला फिर शुरू से। सारा सारा। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतुम मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जालत उस औरत ने बनाया, यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं, हिया तजअलू वो औरत बनाती है, इजअल बना, इजअलू आप सब बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू आप सब मत बनाओ। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट मैंने कल की क्लास में आपको बताया था 22 दिसंबर को इंशाल्लाह हम QC1 दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये साथ साथ चैट बॉक्स में आपने लिखना भी है, ला तजल का मीनिंग्स भी आपने बताना है, मत बना। जी 22 दिसंबर को इंशाल्लाह दोबारा QC1 स्टार्ट करेंगे। 3 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यही टाइम 8 से लेकर 9 बजे तक क्लास होगी। रमज़ान से पहले पहले इंशाल्लाह हम नमाज का तर्जमा वंस अगेन एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेंगे, जो रिपीट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज नए लोगों को लेकर आए, बड़ी जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, 3 दिन क्लासेस होंगी। तो इंशाल्लाह 10 फरवरी तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे QC। और क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, QC2 मुश्किल होता है, इसलिए QC2 आपको नहीं करवा रहे, वरना 3 क्लासेस के साथ वो भी पॉसिबल था। थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इंशाल्लाह QC ये बैच और जो नया बैच होगा दोनों को रमज़ान के बाद QC2 करवाएंगे। इज अल सर हम नी। दोबारा से ले सकते हैं QC1 में? हाँ जी लें, जितनी मर्जी दफ़ा लें, आपको कौन रोक सकता है। वर्क बुक करने की जरूरत नहीं होती ना उसमें, एक दफा की हो तो। वर्कबुक और अगर आपने बात एक दफ़ा करें की है तो फिर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिस्टर, होती है तो जितनी आपने दफा सर्टिफिकेट करेंगे। लेना है। सर हाँ QC2 जी, क्यों नहीं करवा रहे आप? मेरा दिल था चलें कि इसको ये बाद में खत्म हो डिस्कस करते हैं। इज अल नी, इज अल हमने पढ़ लिया, नी मुझे वाला, ठीक है। बना, इज अल बना, नी मुझे, जो हमने दुआ में अंदर पढ़ा था ये। चलें जरा बाद में ना, ये एक दफ़ा अभी मैं क्लास को फिनिश नहीं करूंगा, जो हमने एंड में दुआ है ना वो भी आपने इस कोर्स से रिलेटेड आपने उसका तर्जमा करना है आज। चलिए नुक्ता तालीम देख लेते हैं। नुक्ता तालीम आज का बड़ा ज़बरदस्त है जी। सीखिए पोस्टर से, सीखने के लिए माहौल बनाना है आपने। पोस्टर लगाएं ऑफिस में, घर में, पॉकेट बुक में, जेब में हमेशा रखें। MP3 हमने कहा हुआ जी, ये आजकल तो नेट अवेलेबल है मोबाइल्स पे, आप आते जाते क्लास कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, साथ साथ आप इसको सुन भी सकते हैं। टेक्स्ट बुक अपनी टेबल पे रखी है आपके सामने मेरे पास ये सारी सारी क्यूसेस की बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है।
تو میں پھر بھی ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر رہا تھا، اور QC1 کا جو کارڈ ہے نا اس کو ایٹ لیسٹ جو لوگ بہت آگے تک جا چکے ہیں ایک دفعہ ضرور پڑھیں. ویسے تو ہم 5 ٹائم کہتے ہیں لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھیں. وائٹ بورڈ رکھیں آیتیں لکھنے کے لیے، اور چیزوں کے لیے، دوست پارٹنر خاندان کو اکٹھا کیجیے، ان کو یاد آنی کرائیے. کبھی اپنی بہن سے، کسی سسٹر سے، کسی بھائی سے پوچھیں جی کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، ثنا کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ سنائے گا، بہن بھائی جو بھی ہے اس کو بتائیں ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس سے تھوڑا سا ماحول بنا رہتا ہے. تو پاکٹ بک ان سب سے آسان پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ رکھیے. کم از کم دن میں 5 منٹ بس کو دہرائیے، خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد. اس سے آپ کے سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. تو الحمدللہ 15واں روز، 15واں پھول آپ کے پاس. آج کے سبق میں ہم نے 15واں انشاءاللہ ہم نے فنش کر لیا ہے. 16 17 18 19 اور 20 کے اندر تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے کہ واقعی ہم نے 50% سے زیادہ سیکھ لیے. تو 15 لیسن کے اختتام پر 186 الفاظ الحمدللہ ہم نے سیکھ لیے ہیں. یہ 186 الفاظ قرآن پاک میں اندر 37,512 ہیں. ہم نے اس کے اندر 20 لیسن میں ہم بار بار آپ کو میں یہ یاد کراتا ہوں 232 الفاظ کو سیکھنا ہے، اس میں سے 186 الفاظ 186 کو سیکھ چکے ہیں اس میں سے. اسی طرح ہم نے یہ جو الفاظ ہیں یہ 41,111 بار قرآن پاک میں آئیں گے. اس میں سے آج ہم نے 37,500 بار قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. تو 7 عمر کو یاد رکھیے. 2 تلاوت کے کم از کم کوشش کریں 5 منٹ صرف نکالیں، مصحف کو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیے، بک کو دیکھ کر پڑھیے. 5 منٹ حافظ ہو، جو چیزیں آپ کو یاد ہے نا وہ آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اگر روز 5 منٹ یہ ریوائز کر لیا، فرض کریں میں اگر ہم QC1 کی اگر آپ QC2 3 4 کر چکے ہیں تو 5 منٹ کے اندر آپ ایٹ لیسٹ 5 ہوم ورک کر لیں، پھر اگلے کر لیں، پھر اگلے کریں، پھر اگلے کر لیں. 4 دن کے اندر آپ QC1 کر لیں، 4 دن کے اندر آپ QC2 کو کمپلیٹ کر لیں، 4 دن میں QC3 کر لیں، 4 دن میں QC4 کریں. چلیں 5 6 دن کے اندر آگے QC5 کر لیں. اس طریقے سے جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا اگر آپ رپیٹ کرتے جائیں گے تو ساری زندگی آپ نہیں بھولیں گے. دیکھیے بچپن میں پیرنٹس ہمیں کیا کرتے ہیں، کلمے وغیرہ صورتیں کتنی یاد کرواتے ہیں. آہستہ 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 جب اسٹوڈنٹ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو رپیٹ نہیں کرتے، مائنڈ کے اندر دوبارہ لے کر نہیں آتے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے. نماز کے اندر جو ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آنا شروع ہوگا تو وہ کوشش کیجیے جو آپ کو سمجھ آ چکی ہے. تو ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے. انشاءاللہ اس کی ٹریننگ بھی ملے گی. جو کرٹرز بننا چاہ رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ٹریننگ دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اچھا چلیں میں ریکارڈنگ نہیں بند کر، مجھے یاد آ گیا. ہینڈ ریز وہ لوگ کریں جو یہ والی جو دعا ہے نا اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں. نیٹ بھی سلو ہو گئے جی. ہینڈ ریز کیجئے. چلیں اگر بردر کلام نبی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کے ٹکڑے کرنے ہیں اور تسلی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. جی برادر کلام نبی. سبحانہ پاک ہے تو، سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہم ہمارے رب، و بحمدی یہ 3 ٹکڑے ہوں گے. سبحانہ کا کہ 2 ٹکڑے ہوں گے، اللہم کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، و بحمدی کا 3 ٹکڑے ہوں گے. نشہدو کا کوئی نشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان آپ لا الہ الا انت نستغفرک. نستغفرک کا 2 ٹکڑے ہوں گے اور ونتوب الیک بھی 3 چلیں الیک. بردر اس کا ترجمہ آپ اس طریقے سے کریں کہ جو ہم اس کورس میں پڑھا ہے. جی کوئی اور کرنا چاہے گا ہینڈ ریز کیجئے. سر سلائیڈ نظر نہیں آ رہی، نہیں لگائی. سلائیڈ نظر نہیں آ رہی؟ اللہ سے دعا کہ ہم قرآن کو پڑھنے سمجھ آ رہی ہے سلائیڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے نیچے لکھی ہوئی نا تو سبحانک اللہم و بحمدک یہ والی.
जी जी सिर्फ शीना सुबहाना से का, पढ़ना चाहेंगे जी। सुबहाना का पाक है तू अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दी का, और तेरी ही हमद है, तेरी ही हमद के साथ, नशहदु, हम गवाही देते हैं, अन के, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, अंता आपके, नस्तगफिरु का, तू बख्श दे हमें, व नतूबु, और हमारी तौबा कबूल कर, इलैका, अपने पास से। ये नस्तगफिरु का आपने क्या तर्जुमा किया है? नस्तगफिरु का, हमें बख्श दे, आप बख्श दे हमें। का मतलब देखे ना, अगर आप इसको सही तरीके से टुकड़े करके चलेंगे जी। बहरहाल आप बड़ी अच्छी स्ट्रगल का किया माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्ट्रगल किया, मजीद कोई बेहतरी है जी इसमें? कोई और पढ़ना चाहेगा? सर जी स्लाइड सिस्टर नहीं आ रुखसाना। रही इसकी। जी ब्रदर तारिक। सर स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रही है? चेंज हुई हुई है? नहीं नहीं सर, वही उनको भी नहीं पता लगा, जैसे मुझे नहीं। लास्ट वाली स्लाइड ही है बेटा। साइड में मेरी नीचे स्क्रीन एंड पे पे, वही आ रही है, टीपीआई वाली। नीचे नीचे एंड पे दुआ लिखी हुई है सर, मुझे भी नहीं चले लगा। डॉक्टर रेहाना करना चाह रही है, बाकी जरा फिर। जी डॉक्टर रेहाना। सुबहानका, पाक है तू अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका। सिस्टर रेहाना अनम्यूट कीजिए और दोबारा पढ़िए। हाँ जी, सुबहानका, पाक है तू अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए, नशहदु, हम गवाही देते हैं, अल के, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला सिवाय, अंता आपके, तेरे, नस्तगफिरुका, हम मगफरत तलब करते हैं तेरी, व नतूबो इलैका, और तुझसे तौबा करते हैं। लईका। ते, तेरे से। चले जी सिस्टर रुखसाना करना चाह रही थी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्राई की है जी, बहुत अच्छी की है। जी सिस्टर। सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तमाम तारीफें अल्लाहुम्मा तेरे लिए हैं, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। पाक है तू, ए अल्लाह पाक है तू, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। नशहदुल्ला इलाहा, हम गवाही देते हैं, अल्लाह इलाहा के कोई माबूद नहीं है, इल्ला अंता सिवाय तेरे, नस्तगफिरुका, तुझसे ही मगफरत तलब करते हैं, व नतूबु इलैक, और तुझसे ही मगफरत तलब करते हैं, व नतूबु इलैक, और तुझसे ही तौबा, और तुझसे ही तौबा करने वाले हैं, और तुझसे ही हम तौबा करने वाले हैं। चलें जज़ाकल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा सब लोग। देखिए हमने इस QC1 में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हमने ना पढ़ा हुआ। फर्स्ट देखें तो ये क्या जी, सुबहाना का, सुबहान हमने पढ़ा हुआ है, का सात जमीर है, दो टुकड़े हैं इसके, सुबहाना का। सुबहाना का मतलब क्या है जी, पाक है, का तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, वाबी हमदी का, चार टुकड़े हैं इसके, वा बी हमदी, और आगे का। वाव का मतलब है और, बी का मतलब है साथ, हमद क्या है जी, तारीफ, का तेरे लिए या तेरी। आगे जी, नशहदु, ये जमा का सीगा है, मुदारे का सीगा है, अपनी तरफ आता है, हम गवाही देते हैं, अन के, ला नहीं, इलाह माबूद, इल्ला सवाए, ये हम ला इलाहा इल्ला या अशहदु अन्ना मोहम्मद वहां पे हम पढ़ चुके हैं। आगे वर्ड आ रहा है जी अंता। अंता का मतलब क्या है जी, तू, तेरा। नस्तगफिरु का, ये फिर मुदारे का सीगा, ना नू लगा हुआ है, नस्तगफिरु का दो टुकड़े हैं, नस्तगफिरु ये इंशाल्लाह हम आगे लेवल पे जाके पढ़ेंगे, फेल है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं जी, हम आपसे यानी कि माफी के तलबगार हैं, किससे, तुझसे। वन तूबू, ताबा का हमने पढ़ा हुआ है ना, ये भी मुदारे का सीगा, पलटते हैं, और पलटते हैं कहाँ पे, अलई का, तेरी तरफ। अच्छा ये दुआ जो हम पढ़ते हैं ये है जमा का सीगा। अगर हम इसको सिंगुलर में मैं इसको कहूं कन्वर्ट करना है तो हम ये कहेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु को कहेंगे अशहदु,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरु कहेंगे अस्तगफिर, व नतूबु कहेंगे व अतूबु इलैका। जहां ना आ रहा है वहां पे हमजा लगाएंगे, अशहदु जैसे हमने कहा था आऊजु, वैसे अशहदु, नस्तगफिरु अस्तगफिरु, नतूबु अतूबु। तो इस तरीके से इसका अल्हम्दुलिल्लाह हम तर्जमा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आराम से तसल्ली के साथ उसके टुकड़े कर लें। जब आप इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि पूरे कुरान पाक का तर्जमा पे इस तरह करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। चलें, जज़ाकल्लाह जी। मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूं, फिर आप